Distinguished faculty members, dear students, Assalamu alaikum to all of you. The theme of the program is One Country, One People. I will discuss religious identity. You know, ma'am has already discussed it beautifully that what is the present status of this one country and one people. She discussed it from the constitutional perspective, but I will be discussing it from historical point of view. So religious identities की जब मैंने कहा कि मैं religious identity की बात करूँगा, इस सेंस में बात करूँगा कि that whether people projected their religious differences the same way as they projected them in the 20th century as a result or as a consequence of the British policy of divide and rule. आप देखिए 20th century में हम देखते हैं कि the two major communities of India, that is the Hindus and Muslims, वो अपनी जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं उनको प्रोजेक्ट करने लगे अपने सोशल प्रैक्टिसेस में. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बट दिस वाज जस्ट इन मॉडर्न पीरियड. सच थिंग्स आर नॉट देयर इन मेडिवल पीरियड एंड वी विल ट्राई टू नो दैट टू. बट सी, आप देखेंगे अपनी रिलीजियस डिफरेंसेस को लोग किस तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे कि करते थे कि अपनी सोशल प्रैक्टिस में, ओनली इन मॉडर्न पीरियड, नॉट इन पास्ट. जैसे कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ के मुस्लिम्स जो कश्मीरी बोलते हैं, यू विल फाइंड majority of words in the Kashmiri that is spoken by Muslim Kashmiris are taken from Persian, and the Kashmiri that is spoken by the Pandits of Kashmir, you will see the majority of words were derived from Sanskrit. This projection of the differences, even अगर आप देखेंगे फेरुन फेयरनेस मस्ट द प्रोजेक्शन आसा रिलीज डिफरेंस, बट ओनली इन मॉडर्न पीरियड. ऐसे जो मुस्लिम्स होते हैं तो वो इस फेयरनेस नाल करा एक तरीक, और जो हिंदूस होते थे वो दूसरे तरीके से करें. सो वी विल ट्राई टू नो दैट वेदर दीज डिफरेंस, नो डाउट दीज डिफरेंसेस वेर देयर, एंड द you can say in 1947 when the partition was there, this was an unfortunate thing. Because this was the result of the British policy of divide and rule. But after that, our founding fathers of the modern India in 1947, as ma'am has already discussed, that how they laid the foundation of modern India, how they accepted this diversity, and they united the whole of India through different policies, through different means and through different methods. और कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो वन ऑफ दैट मेथड्स था कि किस तरह से हम देखते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल बनाया गया, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई. ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद फाउंडिंग फादर्स ऑफ जो इंडिया थे उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं माइनॉरिटी में जो थे उन्होंने तो अपना पाकिस्तान डिमांड किया, वो यहाँ से चले जाए. They followed the same philosophy that was followed during the India's national movement. That is the policy of secularism. आप देखेंगे जो Indian National Congress थी at the time of when it was a movement, not a party. पार्टी तो आज़ादी के बाद बनी, उससे पहले एक ही मूवमेंट थी Indian National Congress. इसका सेकुलर गोल हमेशा से रहा है. पार्टीशन के बाद भी अगर आप देखेंगे, पार्टीशन के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं, जो हमारे फाउंडिंग लीडर्स हैं लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं की. जैसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स इमर्ज हो गए थे आज़ादी के बाद कि जो इंडिया है इतनी डाइवर्स कंट्री है, छोड़िए आप जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, दूसरी डाइवर्सिटीज़ भी है यहाँ पे, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है. तो ये आर्ग्यूमेंट इमर्ज हुआ था कि दैट इंडिया कैन बी होल्ड टुगेदर ओनली बाय an autocratic government. But the founding fathers of India, they rejected this idea and they adopted the democratic principle India. तो जैसा मैंने आपको कहा कि that my
focus would be largely on the religious identities of the people in the past, whether they projected them in the same way as they did it in the modern period. जैसे मैंने आपको कहा कि किस तरह से अपनी religious differences को वो project कर रहे हैं modern period में, because of the policy of divide and rule, and also because of the coming of modern politics. Modern politics से भी जो हम देखते हैं religious differences create हुई modern period में. Though our founding fathers in India, they were successful in holding the diverse nation together. अगर हम बात करें पास्ट की तो अशोका के टाइम से हम स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट लार्ज एम्पायर थी इंडिया में वो कौन सी थी? दैट वाज दैट ऑफ द मौर्यास. किसकी सबसे बड़ी एम्पायर थी? मौर्यन एम्पायर सबसे बड़ी एम्पायर. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड, बंगाल इन द ईस्ट, कश्मीर इन द नॉर्थ एंड कर्नाटका इन द साउथ. इतनी बड़ी एम्पायर थी. इससे पहले किसी इंडियन रूलर ने इतनी बड़ी एम्पायर एस्टेब्लिश नहीं की थी. तो आप ये मान के चलो कि जिस तरह से आज डाइवर्सिटी है, उस जमाने में भी इतने बड़े रीजन में बहुत सारी डाइवर्सिटीज थी. रिलीजियस डाइवर्सिटी भी थी, क्योंकि आप देखते हैं 6th सेंचुरी BC में ही इंडिया में अराउंड 61 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इमर्ज हुए. कितने? 61. ओनली 2 ऑफ देम बिकेम फेमस. कौन कौन से? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म था वही दो हम देखते हैं 6th सेंचुरी में फेमस हुई. तो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी थी, कल्चरल डाइवर्सिटी तो होनी थी, क्योंकि आप देखते हैं 1500 BC में जब आर्यंस यहाँ आए, जिन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन की फाउंडेशन रखी, उनका कल्चर जो था दैट वाज कंपैरेटिवली सुपीरियर देन दोज सेटलर्स हु वर देयर इन इंडिया बिफोर देम. 1500 BC से बिफोर अराउंड 3500 इयर्स अगो वो लोग आए 1500 BC. कौन? आर्यंस. तो हम देखते हैं कि दे ऑल्सो इनकलकेटेड इन देमसेल्व्स टॉलरेंस टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड डिसेंट. डाइवर्सिटी के लिए टॉलरेशन क्या थी? आप जैन हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, मैं ब्राह्मण हूं, आपस में मिलकर रहिए. ठीक है. तो डिसेंट के लिए क्या? आप देखते हैं these 61 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म वन ऑफ देम था, 2 ऑफ देम था. ठीक है. सो these two they emerged from the mainstream Brahmanism. जो mainstream religion था ब्राह्मणिज्म था, जिसको वैदिक रिलीजन भी कहा जाता है. तो उसी से ये 61 सेक्ट्स. तो उनको कोई मतलब उनको स्पेस दी गई डिसेंट के लिए. मतलब डिसेंट समझते हैं आप? अपनी राय जो है आप मेन स्ट्रीम पीपल से, मतलब एक आइडियोलॉजी से डिफरेंट सोचे. वहां उस टाइम की रिलीजियस आइडियोलॉजी जो थी वो था वैदिक रिलीजन, जो बेस्ड अपॉन वेदास था. लेकिन जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इमर्ज होते हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो उसमें थे, तो वो उससे डिफरेंट सोचते हैं. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि रिलीजियस डाइवर्सिटी जो इंडिया में थी वो लोग उन्हें एक्सेप्ट की, न कि उसके खिलाफ उठे कि उसको ख़त्म किया. कि सपोज अशोका मौर्य जो आए वो बुद्धिस्ट बने, उसने अपनी विल, अपना रिलीजन लोगों पे नहीं थोपा. उसने ये नहीं कहा कि दैट आई एम द किंग, I am following Buddhism, you too should follow it. No. Even in that age of autocratic, you can say in that age when there was no concept of democracy, when there were no modern ideas of justice and equality, उस टाइम पे भी हम इंडिया में देखते हैं जो लेवल ऑफ टॉलरेंस थी वो बहुत हाई थी, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट था वो बहुत ही अच्छा था. कहाँ? इंडिया में. तो बात करते हैं जो आप मौर्यंस के. हाँ देखो, आप देखेंगे जो किंग है, आप किंग क्या करता है, उसके एडिक्ट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरह से द कॉन्सेप्ट ऑफ वन कंट्री वन नेशन डेवलप्ड इन द रिमोटेस्ट पास्ट. इंडिया में रिमोटेस्ट पास्ट में वन कंट्री वन पीपल का जो नोशन था वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका था. अब अशोका के एडिक्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे, उसके एडिक्ट्स जो थे वो सॉर्ट ऑफ रूल्स थे, उसकी कमांड्स थी, या he was exhorting his people to follow or not to follow some ways or some practices. तो ये एडिक्ट्स कुछ स्टोन्स पे लिखी जाती थी, कुछ पिलर्स पे लिखी जाती, तो इंपॉर्टेंट हाईवेज पे लिखी जाती थी. अफगानिस्तान में बहुत सारी मिलेंगी आपको, यूपी के रीजन में, साउथ के रीजन में. ठीक है. बहुत सारी जगह पे ये एडिक्ट्स मिलेंगे. तो इन एडिक्ट्स में ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट, वो खुद बुद्धिस्ट था और कहते थे कि आप बुद्धिस्ट की ही रिस्पेक्ट करो. अगर आप देखिए उसमें लिखा है रॉक एडिक्ट्स में कि लोगों को, मतलब वो
he exhorts his people to respect not only the shamanas किनको कहते थे जो बुद्धिस्ट रिलीजियस गुरुज होते थे, बट ये काम कर रहा है माइक इसको और थोड़ा जैसा खुशक यूं से चिल्लाना पड़ता है इसके बिना तो आप देखें वो इन एडिक्ट्स में कहता है कि यू रिस्पेक्ट ब्राह्मण्स आल्सो, जो ब्राह्मण्स किसके वैदिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, नॉट ओनली देम यू ही एक्सोर्स हिज पीपल टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स इवन। तो उसने पॉलिसी ऑफ पेरिगोशा गिव अप की थी, मतलब पॉलिसी ऑफ वॉर गिव अप की थी। नाउ ही वाज होल्डिंग टुगेदर द होल एम्पायर, नाउ ही वाज होल्डिंग टुगेदर द डाइवर्स एम्पायर बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ, उसको क्या कहते हैं पॉपुलरली, द पॉलिसी ऑफ धम्मा। क्या कहते हैं? पॉलिसी ऑफ धम्मा। तो हम जो है इसके बाद जब मोरियंस, और दूसरा भी ये भी देखेंगे आप दैट हाउ द रूलर इज नाउ डेवलपिंग ए पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड। लोगों को कहता है कि ऑल मेन आर माय चिल्ड्रन, जिस तरह से मैं अपने बच्चों की बहबूदी के लिए सोचूंगा उसी तरह से मैं अपने सब्जेक्टेड पीपल, जो उसके सिटीजंस, अगर मॉडर्न सेंस में कहेंगे तो जो उसके सिटीजंस होते थे उनको वो अपने बच्चे की तरह समझता था। तो हम देखते हैं कि देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से एनी डाइवर्सिटी एंड एनी डिफरेंस। उसके बाद आप देखिए हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन को बनाने में किसी एक कम्युनिटी का हाथ नहीं है, बहुत सारे पीपल लोग यहाँ आए, माइग्रेशंस आफ्टर माइग्रेशंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप तो जानते ही है इंसान तो एक पर्टिकुलर जगह से आया है, लेकिन हिस्टोरिकल पीरियड जब शुरू हो जाता है इंडिया में, हम हिस्टोरिकल पीरियड विद द कमिंग ऑफ these Aryans ही कहते हैं 1520, उससे पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, we are not able to decide their script, क्योंकि उनका स्क्रिप्ट ऐसे लिखा है कि हमें पता ही नहीं है कि उनकी लैंग्वेज थी क्या, क्योंकि हमको पता ही नहीं उनका स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, we are not able to decide for that script। तो आर्यन से जब हम देखते हैं उनकी बुक्स जो हैं, they are the four Vedas, आपने सुना होगा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो आप देखेंगे वो जो सुपीरियर कल्चर लेके आए इंडिया में, कौन? आर्यंस। आर्यन जो सुपीरियर कल्चर लेके आए, गोड़ा, जो गोड़ा होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स, जो सेंट्रल एशिया में स्टार्ट हो गया था 2000 BC के आसपास, तो वो फर्स्ट टाइम घोड़ा लेके कौन आए? ये लोग। लेकिन उन्होंने जो अर्लियर सेटलर्स थे उन पे कंप्लीटली अपना जो है अपना कल्चर नहीं तोड़ा, बल्कि ये कल्चर जो हम बाद में देखेंगे विद द कमिंग व्हेन मुस्लिम्स came here, how there was a growth of composite culture। इस तरह से हिंदू गंगा जमनी तहजीब जिसे कहते हैं, जो साथ में आने से किस तरह से वो डेवलप हो जाती है। बातें प्लीज मत करें। आप देखेंगे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं अथर्ववेद, वो एज पर द एनालिसिस ऑफ द स्कॉलर्स दैट इज नॉट ट्रूली एन आर्यन। वो उन लोगों के रिलीज बिलीफ्स हैं उसमें जो अर्लियर सेटलर्स, तो डिफरेंट पीपल वर एसिमिलेटेड इन द आर्यन फोल्ड। आर्यन फोल्ड में डिफरेंट पीपल वर एसिमिलेटेड। तो शुरू से आप देखेंगे डिफरेंसेस हैं, लेकिन लोग जो है मिलजुल के रह रहे। अब आप बताएंगे सर ऐसा कैसे? वहां तो आर्यंस ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, वर्ण सिस्टम दैट वाज बेस्ड ऑन बर्थ, बट इन दैट डिवीजन दे वर यूनाइटेड बाय द कॉमन फिलॉसफी। अगर ब्राह्मण की कंडीशन जो है सोसाइटी में वर्ण सिस्टम में सुपीरियर मानी जाती थी बाय द रिलीजियस बैकिंग, शूद्र जो था वो लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट जो था सोसाइटी में माना जाता था, बट स्टिल एक शूद्र जो था उसकी रिलीजियस फिलॉसफी पे वो ये मान के चलता था कि दैट इन द नेक्स्ट बर्थ इफ माय कर्मा इज गुड, अगर मेरे कर्म जो है सही है, अगर इफ आई एम डूइंग गुड डीड्स इन दिस बर्थ, उनका जो कंसेप्ट है रिलीजियस कंसेप्ट है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, तो मैं नेक्स्ट जन्म में जो है ब्राह्मण पैदा हो जाऊंगा। तो एक शूद्र को भी ये लालच थी, दिमाग में जहन में था कि मैं अगर अच्छे काम करूंगा तो नेक्स्ट जन्म में क्या बनूंगा मैं। सो इन दैट डिवीजन द कास्ट इज नो डाउट द वर्ण सिस्टम जो था इट sharply divided the society into four-fold division, but in that division they were united। जिस तरह से हम बाद में देखेंगे जो Muslims and Hindus they were divided in on the basis of their religion, but they were united by many things। मुस्लिम इस्लाम यहाँ आया, कोई अरबी ड्रेस थोड़ी यहाँ आया, लोग जो थे धोती वो कपड़ा पहनने लगे, उनके फूड हैबिट सेम रहे,
उनकी लैंग्वेज, सपोज यूपी के रीजन या पंजाब के रीजन में इस्लाम आया तो लैंग्वेज उनकी मदर टंग वही रही ना। सो उनकी डिफरेंसेस अगर मजहब में थी, बट दे वर स्टिल यूनाइटेड बाय डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। तो थोड़ा आगे और चलते हैं। After the decline of the Mauryas, what you find is that there was the influx of the foreigners in the form of, you see, Indo-Greeks जिनको हम कहते हैं, Kushans जिनको हम कहते हैं, Parthians और Sakas जिनको कहते हैं, Scythians जिनको कहते हैं। जब चाइना वाल बन जाता है तो वो मजबूर हो जाते हैं इंडिया की तरफ आने के लिए। Finally they settled down in India। तो मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि जो इंडियन सिविलाइजेशन को बनाने जो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर सपोज एथनिक ग्रुप या किसी और डिफरेंस के बेसिस पे कोई भी कम्युनिटी हो, उस आप मान के चलिए कि एवरी सिंगल कम्युनिटी कंट्रीब्यूट इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, इट इज प्रोग्रेस। तो कुशान्स ये सब जो आते हैं इंडिया, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास, डिफरेंट पीपल केम हियर, दे गॉट असिमिलेटेड इनटू द इंडियन सोशल फैब्रिक, दे आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स विद द इंडियन सिविलाइजेशन। आप देखेंगे देयर फॉर्मर आइडेंटिटीज जो थी, दे कंप्लीटली गिव अप देम, क्योंकि जो इंडियन का कल्चर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था एज कंपेयर टू देयर कल्चर। तो चलिए थोड़ा, आपको मेरे ख्याल से भूख लगी है, थोड़ा मैं इसको ब्रीफ ही करता हूँ। विद द कमिंग ऑफ द टर्क्स, another element was added to the Indian culture or Indian society, that was the Muslim culture। Muslim culture जब टर्क्स यहाँ आए तो मुस्लिम कल्चर यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है ना। पहले हिंदू कल्चर था, हिंदू कल्चर में भी थोड़ी डाइवर्सिटीज थी। तो विद द कमिंग ऑफ द मुस्लिम कल्चर वी सी द ग्रोथ ऑफ कंपोजिट कल्चर, जिसे हम कहते हैं। कंपोजिट कल्चर क्या, कि अगर हिंदू कल्चर ने मुस्लिम कल्चर को इन्फ्लुएंस किया तो मुस्लिम कल्चर ने वापस में हिंदू कल्चर को भी इन्फ्लुएंस किया। अगर हिंदू के घरों में अगर आप जाएंगे आज, जब बहुएं जो होती हैं घरों में, वो घूंघट नीचे करती हैं, उनका जब जेठा आ जाता है या ससुर जी आ जाते हैं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंदू ओरिजिनल हिंदू कल्चर, दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी ऑन द हिंदू सोसाइटी। क्या जो पर्दा सिस्टम है, दिस इज नॉट द एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट, दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी ऑन द हिंदूज। आज भी अगर आप गांव देहात में जाएंगे हिंदुस्तान के गांवों में, तो आपको ये मिलेगा जो पर्दा सिस्टम स्टिल इंटैक्ट हियर। और मुस्लिम्स को किस में इन्फ्लुएंस किया, मैं मेजर पोर्शंस पे बता देता हूँ। कास्ट सिस्टम पे, बिकॉज कास्ट सिस्टम इज एलियन टू इस्लाम। कास्ट सिस्टम है नहीं है मुस्लिम सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम इन्फ्लुएंस किया। जो जो लोअर कास्ट होते थे इस्लाम में, ये कन्वर्जन के बाद भी उनकी जो पोजीशन समाज में रहती थी, एक्चुअल पोजीशन, वो there was not that much change in their social position despite their conversion from varna or the caste based society to a caste free religion, that is Islam। इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, but still that remained there। तो हम देखते हैं कि दोनों जो हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब आप बताएंगे, अब मैंने कहा कि कंपोजिट कल्चर से लोग मिल बांट के रहते हैं, if they were divided by their religion but they were united by other aspects of life, language, food, habits, dress, etc। ठीक है, तो आप देखेंगे जो सूफी और भक्ति सेंट्स का कंट्रीब्यूशन रहा है इन दो तहजीबों, इन दो कम्युनिटीज को मिलाने में, वो बहुत ही ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। किनका? सूफीज और भक्ति सेंट्स का। आप कबीर के पीछे देखेंगे, मुसलमान भी भागता था नंगे पांव और हिंदू भी भागता था। कबीर कौन था? एक संत था, सूफी था, भक्ति था, जो भी कहे, क्योंकि उसकी बॉडी को दोनों ने क्लेम कर लिया था भारत में। ठीक है, इतना मतलब लोगों को कंफ्यूजन था कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। ठीक है, आप आज भी अगर सूफी दरगाह देखेंगे, you will not only find the Muslims there, but you will also find the Hindus there। ये कोई सडन डेवलपमेंट नहीं है, कल को हुई है आजादी के टाइम पे, ये सेंचुरी से चलती आई है। कौन सी? That the shrines of the Muslim Sufi saints that were visited by both the communities। अब आप बताएंगे सर हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि महमूद गजनी जो है उन्होंने तो टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए। सोचेंगे ना आप, बोलेंगे कहाँ कैसे? आप रूलर्स को मत देखें,
आप अगर रूलर्स को देखेंगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे। नो डाउट रूलर जो होते थे वो रिलीजन को कभी इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे जब आपको लगेगा कि ये जो है बस रिलीजन के बहुत बड़े पैरोकार हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे महमूद गजनी की मैं बात करूं, मैं आपको बहुत सारे किंग्स की भी बात आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे महमूद गजनी की बात करें, उसको क्या कहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, मतलब फ्यू ऑफ देम, मतलब जो उस तरह से सोचते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गाजी। उसने जिहाद किया, अरे वो तो टेम्पल डिस्ट्रॉय किया। बट हिस्टोरियंस डू नॉट टेक दिस व्यू सीरियसली, उनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। They analyzed the invasions of Muhammad bin Tughlaq, Mahmud Ghazni by having the historical methods at their hand. ऐसा नहीं कि हाँ फलाने ने लिखा है तो हम historians मान लेंगे, scholars मान लेंगे। When जब उन्होंने closely इसको study किया, किसको, महमूद गजनवी को। अगर आप आज भी देखेंगे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो अपने टैंक्स और रॉकेट्स का नाम भी महमूद गजनी 1 गजनी 2 रखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे महमूद गजनवी के कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस ने उतना उसको अपलॉड नहीं किया था, इतना उसको कहते हैं, वो मेरा एक दोस्त उसको सीरत मुंतहा तक पहुंचा दिया था, जितना बाद के हिस्टोरियंस ने उसको अपलॉड किया कि ही वाज अ गाजी, ही परफॉर्म्ड जिहाद। तो जिहाद जब लड़ा जाता है, मैं आपसे कहूंगा क्या जिहाद में आप नॉन मुस्लिम आर्मी को इंक्लूड करोगे? मतलब आप जो देखेंगे हिस्टोरियंस, जब हिस्ट्री आप महमूद पढ़ते हैं तो उसकी आर्मी में ही 17 टाइम्स ही इन्वेडेड इंडिया। कितनी बार? 17 टाइम्स ही इन्वेडेड इंडिया एंड नॉट ए सिंगल टाइम ही वाज डिफीटेड बाय एन इंडियन रूलर। तो उसकी आर्मी में ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि कौन थे? हिंदू सोल्जर्स विद द हिंदू कमांडर। नाउ वुड यू अगेन बिलीव इन द सेम व्यू दैट दिस वाज अ जिहाद? हाँ, अब कहीं से लग रहा है जिहाद है। और चीज बता देता हूं मैं आपको किस तरह से हिस्टोरियंस उसको समझते हैं। जैसे अगर ये जिहाद था, इट वाज फॉर द सेक ऑफ इस्लाम, महमूद गजनवी यहां आए तो भाई यहां आके रुक जाते ना। आप आंधी की तरह आ रहे हो, टेंपल डिस्ट्रॉय कर रहे हो, लूट लेते हो टेंपल को और वापस चले जाते हो। द बेस्ट वे टू प्रोसेलिटाइज इस्लाम इन इंडिया कौन सा वे था? टू स्टे हियर एंड स्प्रेड द फेथ ऑफ इस्लाम। लेकिन वो किस तरह से आए? टेंपल को डिस्ट्रॉय किया, निकल लिए वापस। रूलर्स जो आप देखेंगे ना, दे फ्लाउटेड द रिलीजियस रूल्स ओपनली। वो ब्रेक करते थे रिलीजियस लॉज को जब उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होता था। वो रिलीजियस लॉज रूल्स को अडॉप्ट करते जब उनके इंटरेस्ट में होता था। आप बलबन की बात ले लो, कुछ लोग कहते हैं कि दैट देयर वाज अ थियोक्रेटिक स्टेट इन मिडिवल टाइम्स। ठीक है, बलबन क्या था? बलबन ने जब उसको लगा कि अगर किंग की पोजीशन स्ट्रांग नहीं होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसने देखा था रजिया का किस तरह से नोबिलिटी ने काम तमाम किया था, उसके भाइयों का किस तरह से काम तमाम कर दिया था, नोबिलिटी किस तरह से स्ट्रांग हो चुकी थी। बलबन भी पार्ट ऑफ दैट नोबिलिटी था। अब वो किंग बन चुका था, उसको पता था कच्छ वीकनेस, कच्छ में कुछ स्टेप तो हुआ। तो हम क्या देखते हैं दैट बलबन ने क्या किया, उसने कोई रिलीजन का सहारा नहीं लिया। अगर लिया भी दैट वाज कॉन्ट्राडिक्ट, यू कैन से दैट वाज इनकंसिस्टेंट। मैं समझाता हूं किस तरह से। बलबन ने खुद को कहा दैट आई एम जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, and introduced un-Islamic practices in his court, sajda and pebbles, prostrate down before me. When you actually know that the sajda is completely reserved for whom? For Allah. On the one side, he is saying that I am the representative of God, zille ilahi, मैं shadow of God on earth हूँ। दूसरी तरफ से वो सजदा इंट्रोड्यूस करता है। Even the ulemas, religious scholars were not exempted from bowing down before the king, kissing his feet and making the sajda. आप अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, उसने एक दिन काजी मुगहिसुद्दीन से बात की, बोले मजहब मुझे सिखा दो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उसने जब शरिया के बारे में बताया तो वो तो शरिया फॉलो करता ही नहीं था। तो उसने कहा भाई मुझे ज़्यादा ये चीज़ें जो है समझ नहीं आती है, वट एवर आई थिंक, I don't know what is right or wrong as per Sharia, but whatever I think best for the people and the state, I do that.
तो ये चीजें दिखाती हैं कि दैट रिलीजन वाज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द टाइम्स, इट वाज द पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी ऑफ द टाइम्स, जो रूलर को पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर करती थी। ठीक है, आप देखेंगे किस तरह से डिफरेंट किंग्स, मोहम्मद बिन तुगलक या दूसरे रूलर्स हैं, किस तरह से वो हिंदूज और बाकी कम्युनिटीज़ के साथ जो है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये है कि वो होली खेलते थे हिंदूज के साथ। अकबर तो थे ही मशहूर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। He was the great propounder of one country and one people, Emperor Akbar. Even he was, हम बाद में इसको ये करेंगे। तो यहाँ तक समझ रहे हैं आप कि किस तरह से रिलीजन जो था मास्टर्स का, अगर आप बात करेंगे तो मास्टर्स सेम थी। आप जो हैं हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप खेत कल्टीवेट कर रहे हैं, आप पे भी 1.5 प्रोड्यूस, आपकी प्रोड्यूस पे टैक्स लगेगा और हिंदू की लैंड पे भी टैक्स लगेगा। नो डाउट द रूलिंग लीड वाज मुस्लिम, लेकिन वो इस्लाम को तभी यूज करते थे जब उनके फायदे के लिए। एक बाबर की एक बात बताऊं जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी बाबर के बारे में हम पढ़ते हैं तो बता देता हूं मैं। जो बाबर थे, देखिए रिलीजन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, कौन रूलर्स के द्वारा किस तरह से मजहब को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबर ने जब पानीपत की लड़ाई से पहले जब इंडिया की तरफ वो आने लगा, जब वो समरकंद में परेशान हो गया था, जब उसका कोई फुट होल्ड नहीं था, तो उसने काबुल में खुद डेरा जमा लिया था। तो एक 1519 के आसपास एक फ्रंटियर बादशाह होता है, उसको वो कहता है कि आप भाई एक काम कर लो, मैं बड़ा बादशाह हूं, आप जो है मेरे अंडर जो है आ जाओ, आप ट्रिब्यूट पे करो मुझे, मतलब आप मुझे महीने या एनुअली मुझे एक रकम दे दो एंड यू एक्सेप्ट माय ओवरलॉर्डशिप। ठीक है, तो जब उस रूलर ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसको पता था मेरा स्ट्रॉन्ग फूट है, मैं बाबर क्या करे में, ठीक सा। तो हम देखते हैं कि बाबर ने उस पर अटैक किया। अब पहले अगर वो हाँ कर देता तो बाबर का वो दोस्त बन जाता, अब बाबर को गुस्सा आया, उसने ना कर दी। तो फर्स्ट टाइम हम क्या देखते हैं, बाबर जो है ही मेड अ पिरामिड ऑफ 3000 स्कल्स, 3000 खोपड़ियों का वो मीनार जो है बना देता है। कौन? इंटरेस्टिंग बात है, सुनिए आप। 3000, मैं बता रहा हूं कि किस तरह से मजहब को रूलर से यूज करते। आम लोगों को मजहब, मैं बताऊं आम लोगों के का भी क्या स्टेट्स था मजहब को लेकर, किस तरह से वो मजहब को समझते थे। ठीक है, ये मैं रूलिंग क्लास की बात बता रहा हूं, फिर आम लोगों की भी बात करेंगे आप। तो जो बाबर था, पहले तो वो रूलर अच्छा था, अगर वो मान जाता दोस्त बन जाता, लेकिन रूलर ने इनकार कर दिया। तो बाबर ने उस पर अटैक करके वहां के लोग जो अंदर बना लिए थे, 3000 लोगों का कत्लेआम करके उनका क्या बना देता है, मीनार बना देता है, पिरामिड उनके हेड्स का बना देता है। तो कहता है अपनी बाबरनामा में कि दैट दिस वाज अ सर्विस टू इस्लाम। क्या बोलता है कि इन लोगों को मारना, अब उसको जस्टिफाई करना था, लोगों को मार दिया। दिस वाज अ सर्विस टू इस्लाम, क्योंकि ये रूलर जो था ये मुल्हिद था, he has deviated from the path of Islam, ये इस्लाम के रास्ते से गुमराह हो चुका था, ये ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे जो इस्लाम के खिलाफ थे, इसलिए मैंने इनको सबक सिखाया। दूसरी लाइन में लिखता है that this victory was celebrated with a special wine that was brought from कफीरिस्तान। एक स्पेशल वाइन से सेक्रेट विक्ट्री को हमने सेलिब्रेट किया, जो कफीरिस्तान एक जगह है अफगानिस्तान में। अब देखो भाई, आप एक सेक्रेट ड्यूटी कर रहे हो, जिहाद कर रहे हो, इस्लाम के लिए कर रहे हो, उसी इस्लाम के लिए, इस्लाम की सर्विस को आप सेलिब्रेट कर रहे हो उस चीज से जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इस्लाम में। हाँ, समझ रहे हैं ना। तो दूसरी बात बता दूं, एक बार मेरा इंटरव्यू था, मैंने कहा था बाबर लिबरल था। क्या कहा था? बाबर लिबरल था। दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने कहा, मैंने कहा उनकी लिबरल जो है एंसेस्ट्री रही है। तो उन्होंने कहा बाबर लिबरल कैसा था, उन्होंने तो राणा सांगा के खिलाफ जो है जंग, उसको जिहाद नाम दिया। ठीक है, तब जाके जो उनको मैंने कहा तो ये था, एक तो ये जो मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया। दूसरी बात जो मैंने उनको कही कि मैंने कहा कि जो रूलर्स उस समय पे रिलीजन को वो यूज करते थे, जब बाबर यहाँ आते हैं तो उसके रूलर्स और जो नोबल्स हैं तो उन्हीं की गर्मी लज पर मिलज दिल्ली में राय में टोटल शहर जिधर गर्म तक बाउस गाते क्या उस गाते केस इस कोल्ड रीजन पर चाहा सो हार्डली बर्दाश्त करान आ हार्श क्लाइमेट। ठीक है, दिल में वारिया हार्श क्लाइमेट, गर्मी वारिया ज्यादा सन। तो बाबर ने जब फुटहोल्ड यहाँ पे गेन की तो वो क्या सिक्योर्स बना, तमसे ये रूलर्स तो मस्ताना इस दारों ये कि नो सेंट्रल एशिया के तचो मौसम खुशगवार जार पार फिर बार बार फिर रुक रहे ये तमस भाषा वो इधर रुके
योरा राना संगा तमिस अटैक करने में वालों, तो उसने क्या किया, उसने डिक्लेयर किया तो फिर ये वो जिहाद क्या वो आम लोग बिचारे तुम शासन मेन पर सरी चढ़ी तुम समझिए उसमें बाकी पॉलिटिशियंस वगैरह क्या शिकारा। तो हम क्या देखते हैं कि बाबर जो है इस जिहाद, इसको जिहाद डिक्लेयर करते हैं और खुदा से जो अल्लाह से वादा करते हैं कि दैट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल जस्ट डू व्हाट, बता वो शराब यल, ठीक है शराब का वो यल। फाइनली हम देखते हैं वो जंग भी जीतते हैं और बाद में शराब को नहीं पीते हैं, अपने प्रॉमिस को निभाते हैं, लेकिन ओपियम खाते हैं। क्या खाते हैं? ओपियम खाते हैं। ओपियम क्या है? वो भी शराब का ही नशा है। मेरे एक दोस्त को अपनी फियांसी ने प्रॉमिस दिया था कि आप सिगरेट नहीं पियोगे। एक दिन मैंने देखा कि वो बीड़ी पी रहा है, तो मैं क्यों पे तुम मिश्रा बात करो बच्चों में सिगरेट। तो बाबर ने भी सेम चीज, ठीक है। तो बात रिलीजियस डाइवर्सिटीज की कर रहे थे हम। तो अकबर जो थे, he was the great propounder of one country one people, उसने जजिया को एबॉलिश किया, हिंदूज को जो है हाईएस्ट पोजीशंस इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दी, ठीक है। तो टाइम की कमी से ड्यू टू दिस कंस्टेंट ऑफ टाइम आई हैव टू कंक्लूड इट, बट कॉमन मास्टर्स के बारे में थोड़ी चीजें मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से वो रिलीजन को समझते थे। आम लोगों के लिए मजहब जो था वो इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था जितना मॉडर्न। ये एक फैक्ट है एज पर द हिस्टोरियंस, एज पर द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। कैसे? देखो, जब नॉन मुस्लिम्स यहाँ पे थे उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। कुछ कहते हैं कि ज्यादातर सूफी संत के लोगों के थ्रू इस्लाम यहाँ पे फैला, लेकिन जो उनकी अर्लियर प्रैक्टिसेस थी, जो वो सपोज हिंदुइज्म से इस्लाम में आए, तो दे कंटिन्यूड विद दोज प्रैक्टिसेस। कोई इस तरह की कॉन्शियसनेस नहीं थी कि हम मुसलमान हैं तो बस हम हिंदू से बहुत ज़्यादा अलग हैं या इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा अलग हैं। जब जहांगीर कश्मीर आते हैं पुंछ एरिया में, वो क्या देखते हैं कि एक मुस्लिम लड़की, उसका जो हस्बैंड मर जाता है तो वो उसके साथ कब्र में जिंदा लेट जाती है, क्योंकि इट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ द सती। जिस तरह से हिंदू कल्चर में सती होता है, सती में क्या करती है औरत, जिंदा शेरान से वोट का पे फ्यूनरल फायर जो होती है उसकी चिता होती है हस्बैंड की, क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम था उनका। बाद में हम देखते हैं इसको कानूनी तौर पर बैन किया जाता है। बट आप जहांगीर को भी देखेंगे कि जहांगीर भी कोशिश करता है कि इस प्रैक्टिस को बैन किया जाए, ठीक है। नॉट ओनली दिस, अगर आप देखेंगे बहुत रिश्ता ऐसे रूद खतर कश्मीर के बारे में अगर हम बात करें, बस इस कश्मीर के बारे में बताऊंगा कॉमन प्रैक्टिस लोगों के, उसके बाद में कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। कश्मीर की बात अगर करें हम, योर ए डिफरेंट सूफी संत लोग तमो हेशनो के इस्लाम क्या रियल सेंसस मस, मगर डीप पेनिट्रेशन देना अप टू 1930s ताईं इन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इस्लाम को, मतलब इंस्टीट्यूशंस खुले, मौलाना आए कि वो समझे लोग कित कुछ नमाज पढ़े, कित कुछ ड्रेस करो, कित प्रैक्टिस छ इस्लामिक कम छ अन इस्लामिक, तो ऐसे अ सॉर्ट ऑफ यातना छ फोक रिलीजन पढ़नावन। क्या इस पढ़नावन? फोक रिलीजन। सब कुछ और कुछ अगर रूद पे है जात उस खतरा आसा गमस ऐसी सलाह को दादा की जमा करा गां गाना तो बलि चढ़ाओ। इट वाज द कंटिन्यूअंस ऑफ द बलि, जो बलि प्रैक्टिस है हिंदुइज्म, ठीक है। आप देखेंगे जो वक्त का बादशाह था कुतुबुद्दीन शेख हमदानी, जो अमीर कबीर थे, उनके आने से पहले वो टेंपल भी जाते थे। जब शामिरी डायनेस्टी, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी की बुनियाद पड़ी इंडिया कश्मीर में, तो वो मंदिर भी जाते थे, सुबह मस्जिद में नमाज भी पढ़ते थे। दो बहनों को एक साथ शादी करके रखा था। तो जब मोहम्मद जो शेख जो अमीर कबीर आए यहाँ, सैयद अली हमदानी साहब आए यहाँ पे, तो उन्होंने उनको समझाया, मोटिवेट किया, इस्लाम दिखाया, सिखाया, तो उन्होंने ये इस अनइस्लामिक प्रैक्टिस को तर्क कर दिया, ठीक है। आप वन कंट्री वन पीपल, जिस तरह से मैंने कहा अकबर ग्रेट प्रोपाउंडर थे कि लोग जो है म्यूचुअली को एग्जिस्ट करें, तो हमारे यहाँ जो है अकबर ऑफ कश्मीर किनको कहा जाता है? ज़ैनुल आबिदीन को। इस तरह से वो हिंदूज को फुल फ्रीडम देता है, डिस्पाइट बीइंग a Muslim state, how he is providing the complete equal opportunity to all the communities. As I told you that due to this time constraint, I have to conclude it. अगर दोबारा मौका मिला तो हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। Thank you very much.